Okay, today I'm going to start with new point, new topic, chemical reaction and equation. In this topic, I'm going to start with first point, elements, compound and mixture. In 8th standard, we discuss about this 3 point, elements, compounds and mixture. So what is the difference between these three? First, starts with elements. Element. All the atoms in a molecule of an element are alike and are joined to each other by chemical bond. Atom, molecule. First of all, atom, molecule. What is meant by atom? Atom is the smallest particle in the universe. And what is molecule? When two or more atoms are combined to form molecule. For example, hydrogen, oxygen, carbon, nitrogen, that are atoms. And molecule means when two hydrogen and one oxygen are combined, when two hydrogen and one oxygen are combined to form H2O molecule. So atom means it is a single particle or it is the smallest particle, indivisible particle of in the universe, that is the atom. And molecule means combination of two or more atoms called as a molecule. In this case, we discuss about the elements. Elements means all the atom in molecule are alike or they are same, which are joined to each other. For example, H2. H2. There are two hydrogen atoms are combined. Two hydrogen atoms are combined to form one molecule. Yes or no? So there is hydrogen molecule is there, H2 molecule is there. So in that molecule, both the atom are same, H2, both are hydrogen, HH. Second example, O2. Two oxygen are combined with each other. Both the atoms are same, oxygen. Next example, Cl2, chlorine. In chlorine molecule, both the atoms from chlorine atoms. Both the atoms from chlorine, yes or no? So in elements, the molecule of an element are having same atoms which are joined to each other. So it is called as the elements. Then compound. Element or compound में main difference क्या है? In element, all the atoms which are joined to each other are same, but in compound, the atoms are different. For example, CO2. CO2. One is the carbon, another are oxygen. NO2. NO2. It is a one molecule. ये एक molecule में जो atoms है वो अलग अलग है. कौन से atoms है? एक है nitrogen, दूसरे दो है oxygen. Then NO. In NO, one is nitrogen, another one is oxygen. Means different atoms are attached to each other, which is form compounds. So elements, compounds, and mixtures. Element, same atoms are attached with each other, which is called as an element. H2, O2, Cl2, that are the examples. Another one is a different atoms are attached with each other, are joined to each other by chemical bond, are called as a compound. So in element, we discuss about the molecule, single molecule. In compound, we again discuss about the molecule, but only difference in element, in molecule of element, same atoms are present. In compound, in molecule of a compound, different atoms are present. This is the only difference. Now the last one is a mixture. In case of a mixture, when two or more compounds are combined, for example, this NO2. NO2 is a compound or element. NO2 is a compound or element. Compound. NO2 different atom है ना, एक दूसरे को attach है. So NO2 is a compound. NO is again compound. So two different compounds are combined with each other to form mixture. Up to this clear, all of you? So elements, molecule of element which contain two same atoms,
In compound, molecule of compound contain two different atoms, and in mixture, two or more compounds are combined with each other to form mixture. Agree all of you? So I'll give you example. Tell me, NaCl. It is element, compound or mixture? NaCl. Mixture. Compound. Next topic, physical and chemical change. Physical change. In this only, the state of matter changes, and this change is often temporary in nature. So physical change means only the change in state of matter. State of matter. First of all, you know about the state of matter. There are three states of matter: solid, liquid, and gas. There are three states of matter: solid, liquid, and gas. So there is a only change in the state of matter that is called as a physical change. For example, solid state में है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, दैट इज अ फिजिकल चेंज. फॉर एग्जांपल आइस है, हमने फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया. आफ्टर 5 minutes, आफ्टर 10 minutes, what happened? The ice Starting. It convert into liquid state, it starts to melt and it convert into liquid state. So ice is this solid form of water, solid form, water का solid form है ice. When जब हम उसको बाहर रखेंगे, फ्रीजर से निकाल के बाहर रखेंगे, what happened? It converts into liquid state. That is a liquid states of water. Means water ही है. जो आइस था वो भी H2O था, जो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ वो भी H2O है. मीन्स कॉम्पोजिशन आर सेम, उसमें जो एलिमेंट्स है, जो कंटेंट है वो सेम है, बस चेंज क्या है? स्टेट. एक में सॉलिड था, दूसरे में लिक्विड हो गया. सो द चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर विच इज कॉल्ड एज ए फिजिकल चेंज. सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, अगर वो लिक्विड वाटर को हीट करेंगे, आफ्टर सम टाइम इट गेट इवेपोरेट. सो that is nothing but physical change. Solid convert into liquid, liquid convert into gas, solid convert into gas, gas convert into liquid, liquid convert into solid. So that is called as a physical change. Next one is the chemical change. Chemical change means during chemical reaction, composition of matter changes and that change remains permanent. See, physical change are temporary. Temporary क्यों? अगर हमने बर्फ फ्रीजर से बाहर निकाला, आइस क्यूब अगर फ्रीजर से बाहर निकाला, उसको बाहर रखा 5-10 मिनट, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा. अगर फिर से वो फ्रीजर में रखा, वो फिर से सॉलिड बन जाएगा, फिर से वो आइस बन जाएगा. टेम्पररी. जैसे ही कंडीशन चेंज करते हैं, टेम्परेचर कंडीशन चेंज करते हैं, उसका स्टेट चेंज होता है. सो फिजिकल चेंज आर टेम्पररी चेंज, but chemical change are permanent change. In chemical change, the composition of matter are changes. In chemical change, the composition of matter are changes. For example, अगर हमने food, for example, कोई सब्जी अगर लेके आए हम बाजार से, उसको अगर हमने सब्जी बना रहे हैं, क्या होता है? जैसे वो बाहर से लेके आए थे वैसे ही रहती है, या उसका कन्वर्जन कुछ अच्छे में हो जाता है? फूड बॉईल करने पे, कुक करने पे उसका कॉम्पोजिशन चेंज होगा या नहीं होगा? यस और नो? वो पूरा मतलब उसका कॉम्पोजिशन ही चेंज होगा ना, कुछ तो चेंज होता है. वो प्रॉपर कुक हो जाती है, इसलिए तो हम खा सकते हैं. बाहर से गोभी लाया, कच्चा खाते हैं हम लोग? नहीं ना, उसकी सब्जी बनाते हैं, वो टाइम पे वो खाते हैं ना. सो इन कुकिंग ऑफ फूड द कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर आर चेंज. मीन्स उसमें जो कंटेंट था वो चेंज हो गया. सो इट इज कॉल्ड एज ए केमिकल चेंज एंड विच इज परमानेंट. चिकन हम लोग बाहर से लेके आए, घर पे चिकन पकाया, ओके. सो चिकन बाहर से लेके आते हैं तो कच्चा रहता है, जब घर पे पकाया तो हो गया ना, पूरा वो प्रॉपर कुक हो गया, या वो कच्चा ही रहता है? प्रॉपर कुक हो जाता है ना. सो इन दैट केस, और वो एक बार कुक हो गया प्रॉपर वे से, तो फिर से वो
उसको कच्चे में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, एक बार कुक हो गया मीन्स वो प्रॉपर वो पक गया. सो द केमिकल चेंज आर परमानेंट चेंज. नाउ सी द एग्जांपल. सी, there are three boxes: phenomenon, physical change and chemical change. Let's see one by one. Transformation of ice into water. क्या है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर क्या है? Physical change. Physical change, because in case of transformation of ice into water, the states of matter are changed, not the composition of matter. So it is physical change. Cooking of food, chemical Chemical change. change. The composition of matter will be changed, so it is chemical change. Ripening of fruit, केमिकल चेंज. आम हम लोग घर पे लेके आते हैं कभी कभी. देखो अभी अभी ये साल तो लॉकडाउन की वजह से सब पूरा चेंज हो गया है, बट नॉर्मली जब नेक्स्ट पॉइंट इज केमिकल. केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन व्हिच some substance undergo bond breaking and are formed into new substance by formation of new bonds. A chemical reaction is a process in which some substance undergoes bond breaking and are transformed into new substance by formation of new bonds. Means A और B है, अलग अलग है, दो अलग अलग कंपाउंड है, A है B है. When we combine A and B to form one molecule AB, that is the chemical reaction. और NaCl, salt लिया, सिंपल सॉल्ट है एक छोटे से बीकर में, दूसरे बीकर में पानी है. When we add salt into water and we stirred it, after some time क्या होता है, चेंज क्या होता है, हमें बीकर में सिर्फ एक ही कंपाउंड दिखेगा, मतलब सिर्फ लिक्विड ही दिखेगा. NaCl सॉल्ट नहीं दिखता है. क्यों नहीं दिखता है सॉल्ट? When we add salt into water, we stir it. After some time, the salt are completely disappear. क्यों? सॉल्व हो जाता है वो. Dissolve हो जाता है. It is the chemical reaction. When some compounds are make a bond, some compounds are making a bond or breaking a bond and form a new compound, it is nothing but chemical reaction. So in chemical reaction, second point is the substance taking part in chemical reaction are called as reactant, whereas the substance formed as a result of chemical reaction called as a product. Means हमने salt लिया, water लिया, नींबू लिया and थोड़ा सा sugar लिया. सी, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या है? मैंने एक ग्लास में वाटर लिया है, थोड़ा सा मैंने नमक लिया है, थोड़ा सा शुगर लिया है एंड नींबू लिया है हाफ. कंबाइन करेंगे क्या बनेगा? नींबू शरबत बनेगा ना? अरे इतना तो पता ही होना चाहिए. That nimbu, sugar, salt and water, that four are the reactant. That four are the reactant. And जो नींबू पानी है, that is the product. Up to this clear? So the substance taking part in chemical reaction are called as a reactant. So वो जो चार है वो reactant है, और जो resultant compound बना, that is nothing but product. Agree all of you? Now see the example. Formation of carbon dioxide gas by combustion of coal in air is a chemical reaction. ये example देखो, ये basic example है. I think 8th standard में हमने discuss किया है ये example के बारे में. Formation of carbon dioxide. Carbon dioxide CO2 कैसे बनेगा? By combustion of coal in air. Coal means carbon. Air means oxygen, O2. पहले रिएक्शन देखो यहाँ पे. कार्बन, लास्ट रिएक्शन देखो. कार्बन which is coal, air means O2, where carbon
to form CO2. So इसमें रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, फटाफट बोल दो चलो। रिएक्टेंट क्या है, ये रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन से और प्रोडक्ट कौन से है? कार्बन और C ऑक्सीजन। plus O2 reactant Yes, C and and O2 are reactant and CO2 are product. Okay, शॉर्ट में आप अगर मतलब आपको एकदम परफेक्ट अगर याद रखना है तो देखो, जो लेफ्ट साइड में है एरो के लेफ्ट साइड कंटेंट जो है दैट इज रिएक्टेंट, एंड एरो के राइट साइड कंटेंट जो भी है दैट इज प्रोडक्ट. ओके, सो रिएक्टेंट इज ऑलवेज एट द राइट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट ऑलवेज एट द लेफ्ट हैंड साइड. सॉरी, reactant always at the left hand side and product always at the right hand side. दिख रहा है ना, रिएक्टेंट लेफ्ट में है, प्रोडक्ट राइट में है. नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड एग्जांपल, अ कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट. जिंक सल्फेट का कलर जो होता है वो कलरलेस होता है. कलरलेस मतलब वाटर जैसे कलर. इट्स फॉर्म्ड ऑन addition of zinc dust to the blue solution of copper sulfate. मतलब रिएक्शन किसके बीच में है? कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डस्ट okay. So the next example is aqueous solution of copper sulfate. In that copper sulfate we have to add zinc dust. What happened? There is a formation of aqueous solution of zinc sulfate and copper. मीन्स यहाँ पे चेंज क्या हुआ, जो कॉपर सल्फेट था उसका कन्वर्जन हो गया जिंक सल्फेट में, और यहाँ पे जो सिंगल जिंक डस्ट था उसका कन्वर्जन हो गया कॉपर में. सो इन दिस केमिकल रिएक्शन, ये रिएक्शन देखो उस पर आइडिया आ जाएगा. CuSO4 is a copper sulfate, CuSO4. In blue color CuSO4, when we have to add zinc dust, solid form में जिंक के ऐसे पार्टिकल्स होते हैं वो ऐड किए, so that CuSO4 is converted into ZnSO4 and single CuR form. मतलब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ? Next topic, writing a chemical equation. This is very important part and थोड़ा सा अलग part है, आप जरा इस पे ध्यान दे दो. Writing a chemical equation. First point, the reactant are written by the product on the right hand side. जैसे हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा, रिएक्टेंट जो होता है वो लेफ्ट में होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो राइट में होता है. ये जो हम कंटेंट दिख रहा है ना, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, ये इसके बारे में है. ये जो केमिकल इक्वेशन मैंने लिखा है ना लास्ट में, मतलब ये मैंने थियोरेटिकल सेंटेंस लिखा कि जिंक सल्फेट एंड कॉपर रिएक्ट हो रहे हैं एंड कॉपर सल्फेट फॉर्म, सॉरी कॉपर सल्फेट एंड जिंक रिएक्ट हो रहे हैं एंड जिंक सल्फेट फॉर्म हो रहा है. ये यहाँ पे मैंने थियोरेटिकल सेंटेंस लिखा, बट केमिकल इक्वेशन उसका कैसे लिखते हैं, ये CuSO4 Zn, ZnSO4 Cu, ये जो है इसके रूल्स ये नेक्स्ट स्लाइड में है. राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, the reactant are written on the left hand side while the product on the right hand side. The arrow heading towards the product is drawn between them. We know reactant left में, product right में, दोनों के बीच में arrow, reactant to product, arrow appoint करना है. Next point, if the reactant or product are two or more, they are linked with a plus sign in between them. फॉर एग्जाम्पल A और B दो रिएक्टेंट है, तो A और B को सेपरेट कैसे करेंगे? पॉजिटिव साइन A प्लस B टू फॉर्म प्रोडक्ट. यस और नो? सो दे आर लिंक्ड विद अ प्लस साइन. नेक्स्ट पॉइंट, ये थोड़ा बड़ा पॉइंट है. द फिजिकल स्टेट लाइक गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट are indicated by writing the letter G for gas, L for liquid and S for solid respectively in the bracket. If the physical state like gaseous, liquid and solid state are indicated by writing the letter G, L
the moreover if the product is gaseous, see ये जो G, L and S है ये रिएक्टेंट में लिखने हैं। रिएक्टेंट में अगर रिएक्टेंट लिक्विड स्टेट में है या फिर रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में है तो हम लोग वो रिएक्टेंट के बाद में S लिखेंगे। बट अगर प्रोडक्ट में है गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, ये अगर प्रोडक्ट में है तो इंस्टेड ऑफ G इट कैन बी इंडिकेटेड बाय एरो अपवर्ड। अगर प्रोडक्ट गैस फॉर्म में है तो G नहीं लिखना है, उसके साइड में अपवर्ड एरो करना है। अपवर्ड एरो क्यों? गैस जो है हमेशा ऊपर जाती है ना, गैस कभी भी गैस एक जगह पे रहती है कि नहीं, वो ऊपर की तरफ मूव होती है। तो गैस आर पॉइंटिंग अपवर्ड। If the product form is insoluble solid in the form of precipitate, then instead of solid or S, it can be indicated by arrow downward. Arrow downward. क्यों? Because जो सॉलिड होती है वो हमेशा नीचे जाती है। अगर पानी में हम लोगों ने सॉइल के पार्टिकल्स डाले तो सॉइल जो है, सॉइल के जो पार्टिकल्स है वो ऊपर फ्लोट नहीं होंगे। इनिशियली वो फ्लोट होते हैं, बाद में वो नीचे जाके बैठते हैं। पूरा पानी जो है वो साफ दिखता है। क्यों? वो जो सॉइल पार्टिकल है जो सॉलिड फॉर्म में है, इट गोज डाउन। When reactant and product are in the form of solution in water, they are said to be present in aqueous solution state. This indicated by putting letter AQ in bracket after their formula. ये जो सब rules है इसके examples मैंने next slide में discuss किए हैं। So यहाँ तक समझा आप लोगों को? Reactant which is written always on the left side, product on the right hand side. If two or more reactant or two or more product are there, then it is separated by positive sign. Next one, physical state like gas, liquid and solid in case of reactant which is mentioned like G, L and S respectively. But if it is in product, मतलब gas, liquid and solid अगर product में है तो instead of G written as draw upward arrow, and in case of S solid you have to draw downward arrow. When heat is given from outside to bring about a reaction, it is indicated by sign delta. ये जो है ना डेल्टा है, ये जो साइन है आपको लगेगा ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल नहीं है, वो बोलते हैं। दिस साइन इज यूज फॉर हीट, मीन्स अगर हम हीट कर रहे हैं किसी रिएक्शन को, अगर हमने नॉर्मल वे से वो अगर रिएक्शन नहीं हो रही है तो उसको हम बर्नर पे रख के हीट करते हैं। सो इन प्रेजेंस ऑफ हीट मीन्स हम उसमें दिखाएंगे ये साइन दिखाएंगे, एंड रिटन अबाउट द एरो दैट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। नाउ सी द एग्जांपल। एंड लास्ट, इफ द हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन देन इट इज रिटन एज अ प्रोडक्ट। मीन्स हीट अगर हम यूज कर रहे हैं तो फिर उसको रिएक्टेंट में लिखना है, एरो पे लिखना है। अगर हीट रिलीज हो रही है उसको प्रोडक्ट में लिखना है। अब देखो एग्जांपल देख के याद है, समझ में आएगा। सी CuSO फॉर Zn टू फॉर्म ZnSO फॉर Cu। जैसे फर्स्ट रूल था, फर्स्ट रूल क्या था? रिएक्टेंट इज ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट इज ऑलवेज ऑन द राइट हैंड साइड। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर दो या दो से ज्यादा है तो उसके बीच में पॉजिटिव साइन करना है। ये दो रूल हो गए यहाँ पे सेटिस्फाई। नेक्स्ट रूल, इफ द रिएक्टेंट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, देन यू हैव टू रिटन लाइक S। एंड अगर प्रोडक्ट में सॉलिड है, बट सॉलिड कौन सा? प्रिसिपिटेट फॉर्म में। ये में प्रिसिपिटेट मोस्टली नहीं होता है, कॉपर जो है प्रॉपर वे से सेपरेट हो जाता है, इसलिए इसको S लिखा है। अगर यहाँ पे S की जगह पे आप डाउनवर्ड एरो भी करोगे तो भी समझेगा कॉपर इज ए सॉलिड फॉर्म, प्रोडक्ट में है। रिएक्टेंट में S लिखो, प्रोडक्ट में है तो डाउनवर्ड एरो करो। अगेन एक्वियस क्यू, एक्यू वर्ड क्यों यूज करना था? अगर जो सॉल्यूशन है वो वाटर में बना है, पानी में बना है, मींस CuSO फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल डिसॉल्व इन वाटर, तो उसके आगे क्या लिखा? AQ। AQ मीन्स aqueous। Aqueous word is used for water।
word used for water. तो solution अगर water में बनाया है means that solution is a aqueous solution. So it is mentioned as aqueous. So reactant में CuSO4 aqueous में है, product में ZnSO4 aqueous में है. Second example, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में है, पाउडर होती है व्हाइट कलर की. कुंजल, प्लीज पे अटेंशन. CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में व्हाइट कलर की पाउडर होती है. When we heat the calcium carbonate, what happened? There is a decomposition of calcium carbonate. Means जो molecule है decompose होता है. Decompose होता है मतलब break होता है. And the carbon dioxide is release out. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ एंड जो सॉलिड है वो है CaO. कार्बन डाइऑक्साइड, एक मिनट, special information or names of reactant or product written below their formula. Special information मतलब क्या? देखो ये रिएक्शन है, Cu plus HNO3 to form CuNO3 twice plus 2NO2 plus H2O. अभी ये केस में Cu is a solid, HNO3 नाइट्रिक एसिड which is prepared in aqueous solution, water में, तो उसके आगे aqueous EQ लिखा. CuNO3 twice aqueous में है, 2NO2 gaseous state में है and water. Special information मतलब क्या? ये जो HNO3 है, HNO3 means nitric acid which is strong acid. तो वो strong acid आइदर रिएक्शन में हम कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेते हैं या डाइल्यूटेड फॉर्म में लेते हैं. कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, एंड डाइल्यूटेड मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड. सो दिस स्पेशल इंफॉर्मेशन, ये जो HNO3 यहाँ पे यूज किया है वो कॉन्सेंट्रेटेड है. अभी देखो ना, अगर हम नींबू शरबत बना रहे हैं, हाँ, वो नींबू शरबत में अगर पानी थोड़ा कम हो गया और नींबू का क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा हो गया तो वो खट्टा ज्यादा लगता है, या फिर उसमें शुगर एक्स्ट्रा हो गया. शुगर, नींबू और जो भी नमक वगैरह डाला है उसमें अगर पानी का क्वांटिटी थोड़ा कम है तो वो ज्यादा ऐसे ये लगता है, मतलब टेस्ट भी उसका एकदम बहुत ज्यादा शुगर, बहुत ज्यादा नींबू, ये सब ऐसे फील होता है. तो क्या करते हैं हम लोग, उसमें थोड़ा पानी ऐड करते हैं, उसको फिर से करते हैं. एक बार फिर से पानी ऐड कर दिया मतलब उसको थोड़ा डाइल्यूट किया. डाइल्यूट करने के बाद उसकी टेस्ट जो है वो प्रॉपर हो जाती है. तो कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स लेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड मोर अमाउंट ऑफ compound, and diluted means more amount of water and less amount of compound. Next example देखो, Cu plus 8HNO3, Cu plus 8HNO3 gives 3CuNO3 twice plus 2NO plus 4H2. Again इसमें स्पेशल इंफॉर्मेशन जो है, स्पेशल इंफॉर्मेशन है यहाँ पे HNO3 जो है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में. C, ये जो हमने लास्ट रूल देखा था, स्पेशल इंफॉर्मेशन मतलब सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूटेड है, या फिर जो कंपाउंड है उसका नेमिंग लिखा हमने, तो वो सब ऐसे नीचे लिखना है. लास्ट इसमें अभी स्पेशल इंफॉर्मेशन क्या है, दिस AgNO3 react with each other to form AgCl and NaNO3. AgNO3 NaCl react with each other to form AgCl and NaNO3. ये जरा रिएक्शन डिस्कस करते हैं. ये रिएक्शन में विवेक, तीर्थ, भाग्यलक्ष्मी, अजय, where are you? Balancing a chemical equation. Balancing a chemical equation. See, केमिकल इक्वेशन, आपको केमिकल इक्वेशन दिया है. फॉर एग्जांपल NaCl, वाटर को मिक्स किया
तो बनेगा सॉल्ट सॉल्यूशन। बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें हम लोग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बैलेंस करते हैं। मतलब जितने रिएक्टेंट है उतने ही प्रोडक्ट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर रिएक्टेंट में 2 सोडियम है, 2 Na are there, so definitely in product the number of Na atom are same 2। कभी ऐसे नहीं होना चाहिए कि रिएक्टेंट में 2 सोडियम है लेकिन प्रोडक्ट में 6 आ गए। व्हाट अबाउट 4? 4 एक्स्ट्रा कहाँ से है? हवा में से तो आएंगे नहीं, वो रिएक्शन में ही कहीं से रहेंगे। So that part is nothing but balancing a chemical equation. So there are different steps to balance the chemical equation. Let's see step by step. See, word equation आपको मैंने यहाँ पे दिया है। कुंजल, pay attention. वर्ड इक्वेशन क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्रॉपर ध्यान दो। वर्ड इक्वेशन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। नाउ टेल मी इन दिस केस रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है? इसमें रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टेंट है। Okay, sodium hydroxide and sulfuric acid are reactant and sodium sulfate and water are product. Now steps क्या है? First step to writing or to balance a chemical equation, the first step is write the chemical equation from a given word equation. जो भी वर्ड इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन के बेसिस पे पहले केमिकल इक्वेशन लिखो। केमिकल इक्वेशन मतलब उसके फॉर्मूले, जैसे कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यू शुड नो, सोडियम Na, हाइड्रोक्साइड OH, so it is NaOH, it is NaOH. Sulfuric acid means H2SO4 to form sodium sulfate means Na2SO4 and water means H2O. Now second step of the balancing a chemical equation is, second step, check whether the equation is balanced or not by comparing the number of atoms of various elements present on the two sides of the equation. देखो क्या लिखा है, check whether the equation is balanced or not. पहले चेक करो इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। कैसे चेक करना है? बाय कंपेयरिंग द नंबर ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द टू साइड ऑफ द इक्वेशन। मतलब रिएक्टेंट में कितने एलिमेंट्स है एंड प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स है। देखो ये पहले एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट है? सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन ही है, या सल्फर है। मतलब रिएक्टेंट में सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। प्रोडक्ट में क्या क्या है? प्रोडक्ट में भी सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो ये पहले लिखो, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड में सोडियम कितने हैं? वेयर इज विवेक? विवेक वेयर आर यू बेटा? टेल मी इन रिएक्टेंट ये लेफ्ट साइड में सोडियम कितने हैं? सोडियम Na कितने हैं? 1 2 3 4 5 कितने हैं? देखना रिएक्शन देख के बोल मुझे। लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट में सोडियम कितने हैं? 1 sodium are 1. In case of product, how many sodium? Vivek? 2. Okay, mute yourself. So in reactant Na1, ऑक्सीजन कितने हैं? कशिश रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने हैं? 5 ऑक्सीजन।
प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन है? 5, 4 एंड दिस वन 5. कुंजल बेटा, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं? 3. 3. This 2 and this 1. Sorry. 3 hydrogens are there. And product में कुंजल 2. 2 hydrogens are there. अजय, सल्फर कितने हैं रिएक्टेंट में? 1. 1. And product में 1. 1. So these are the atoms in product and in reactant. How many atoms and in product and reactant are present? ये सेकेंड स्टेप हो गई. ये पहले लिख लो एक टेबल में. नेक्स्ट स्टेप, इट इज कन्वीनियंट टू स्टार्ट द बैलेंसिंग. अभी हम बैलेंसिंग एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे. इट इज कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग एन इक्वेशन फ्रॉम द कंपाउंड which contain maximum number of atoms. Moreover, it is convenient to first consider that element in this compound which has unequal number of atoms on the two sides. अभी जैसे इसमें सोडियम 1 2 है, ऑक्सीजन सेम है, हाइड्रोजन भी डिफरेंट है, सल्फर सेम है. अभी इसमें ऑक्सीजन प्रोडक्ट में चेंज क्या है? डिफरेंस किसके बीच में है? सोडियम, नंबर ऑफ सोडियम एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन. सो लेट्स स्टार्ट विद सोडियम फर्स्ट. लेट्स स्टार्ट विद सोडियम फर्स्ट. पहले सोडियम को बैलेंस करते हैं. जो इम्बैलेंस है वो पहले बैलेंस करते हैं. तो सोडियम को जब बैलेंस करेंगे, पहले ये बॉक्स देखो, ये रिएक्शन बाद में देखते हैं. सोडियम को बैलेंस करते हैं. अभी इनिशियली सोडियम, रिएक्टेंट में सोडियम कितने थे लास्ट स्लाइड में? 1. एंड प्रोडक्ट में, ये पहले ये वाला टेबल देखो, रिएक्टेंट में सोडियम 1 था, प्रोडक्ट में सोडियम 2 थे. सो क्या करना है हमें? प्रोडक्ट में कम नहीं करना है, रिएक्टेंट में इंक्रीज करना है. कहीं पर भी कम नहीं, कुछ भी करना है, रिएक्टेंट में इंक्रीज करना है. तो रिएक्टेंट में 1 था सोडियम, प्रोडक्ट में 2 थे. तो रिएक्टेंट में अभी हमें डबल करना है. तो क्या करेंगे? डबल कैसे करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यही दिया है, टू बैलेंस 1 into 2 रिएक्टेंट में करना है, प्रोडक्ट में कुछ नहीं करना है. प्रोडक्ट में नंबर ऑफ सोडियम आर रिमेन एज इट इज 2. तो अभी हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया. तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ सोडियम को नहीं करेंगे, पूरे NaOH को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो अभी ये रिएक्शन क्या बनी? 2NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस H2O. क्या चेंज हुआ? लास्ट इक्वेशन, जो लास्ट इक्वेशन था वो NaOH, H2SO4, Na2SO4 एंड H2O था. बट जब हमने NaOH सोडियम को जब बैलेंस करना स्टार्ट किया, so we have to multiply this NaOH with 2. We have to multiply Na with 2, but not only Na, we have to multiply whole group NaOH with 2. So as per that, the equation is 2NaOH, H2SO4, Na2SO4, H2O. This clear all of you? Up to this clear? Next, अभी फिर से चेक करो, check whether the equation is balanced or not. फिर से चेक करो, फिर से टेबल बनाओ. NaOH, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर. अभी लेफ्ट साइड, अभी ये इक्वेशन में लेफ्ट साइड में हाउ मेनी सोडियम? 2. सो 2 सोडियम. राइट साइड में तो 2 ही थे पहले से, सो इट इज 2. बट हियर देयर इज ए इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन. लेफ्ट ऑक्सीजन थे 5, अभी यहाँ पे बन गए 6. सी ना, H4O4 means 4 oxygen and 2 NaOH means 2 Na 2O 2H means oxygen 2 हो गए. So 2 plus 4, 2 plus 4 6 oxygen. प्रोडक्ट में एज इट इज है 4 plus 1 5. हाइड्रोजन 2H and H2 प्रोडक्ट में 2, सल्फर 1 1. तो अभी
ये बॉक्स के हिसाब से बैलेंस क्या है और इम्बैलेंस क्या है? एनीवन? ये बॉक्स के हिसाब से बैलेंस्ड क्या है और इम्बैलेंस क्या है? भाग्यलक्ष्मी, भाग्यलक्ष्मी, महालक्ष्मी कहाँ गई तू? बैलेंस क्या है? सोडियम बैलेंस है और सल्फर सल्फर बैलेंस। इम्बैलेंस क्या हुआ? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इम्बैलेंस क्या हुआ? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है 6 एंड हाइड्रोजन है 4 और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है 2। मींस मिनिमम नंबर कहाँ पे है? रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में है? प्रोडक्ट में है। तो जहां पे मिनिमम नंबर है वो नंबर पे मल्टीप्लाई करना है, मतलब वो इंक्रीज करना है। कहीं पर भी मैक्सिमम नंबर डिक्रीज नहीं करना है, मिनिमम नंबर इंक्रीज करना है। मतलब अभी हमें फोकस किस पे करना है? प्रोडक्ट में। सो प्रोडक्ट में H एंड O दिख रहा है, H2O दिख रहा है, H2O। तो क्या करेंगे? प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 4 है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 है, H2 2 ही है, तो उसको डबल करने, 4 करने मतलब डबल करने। क्या करेंगे? डबल करना है मतलब क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। So we find that equation is not balanced as the number of oxygen and hydrogen atom are unequal on the two sides. First, balance the hydrogen atom as it requires a smaller factor. Apply factor 2 to the product H2O for balancing the equation. पहले हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, फिर ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं। सो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया? ये H2O को 2 से मल्टीप्लाई किया। We multiply this H2O with 2. So 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अभी काउंट करो सब लोग। रिएक्टेंट में सोडियम कितने हैं? रिएक्टेंट में सोडियम कितने हैं? अजय, हाउ मेनी सोडियम इन रिएक्टेंट? 2. 2. So as per the sixth step, you have to check whether the equation is balanced or not, and if the equation is balanced, now the final step is to write the equation in bracket. So ये bracket में final equation लिखा 2NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus 2H2O. So this is the rules to balance the chemical equation.